Hello everyone. Hi guys, how are you? Welcome to the session, everybody. Am I audible? Good evening, Butcher. Good evening. Everything is clear now? Am I audible, visible? Everything is good? Can we start the session, everybody? Good evening, Butcher. Very, very good evening to all of you. All right, guys. So today we are going to start with the complete course of reasoning ability for OMETs. Right. Guys, जल्दी से बता दो यार comment section में am I audible to you? आवाज आ रही है बच्चों? Am I audible to you guys? Okay. ठीक है बच्चों. So guys, complete course of reasoning ability for OMETs is what I am going to start. देखो बच्चों, all these exams that you're going to appear for other than CAT, right? इन सभी exam के अंदर बच्चों there's a one section which is completely different from your CAT exam syllabus, right? CAT में जो आप data interpretation and logical reasoning के concept study करते हो, those concepts, right, are relevant for CAT only. But when it comes to OMETs, right? When it comes to OMETs, guys, these are the concepts we are supposed to study, right? These are the for OMETs, these are the papers that you will be appearing for, and there's a one section which is called as a reasoning ability, everyone, right? Reasoning ability के अंदर we are going to study total 12 different topics, right? जो हमारे CAT से relevant नहीं है, right? These are topics which are not relevant for CAT. These are the topics which are relevant for the reasoning ability of these entrance exams, right? बच्चों कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, आर यू गाइस अवेयर ऑफ इट, राइट? ये रीजनिंग एबिलिटी में इन सभी के लिए, राइट? नाउ गाइस लेट मी टेल यू, एनमैट के लिए रीजनिंग पढ़ना है, स्नैप के लिए रीजनिंग पढ़ना है, आईएफटी के लिए, सबका सिलेबस एक ही है, राइट? सो ओएमईटी का रीजनिंग एबिलिटी का कोर्स वुड बी सेम. वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 12 टॉपिक्स, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, राइट? अच्छा, और कौन कौन से टॉपिक है सर other than coding and decoding, guys, right? This is the first topic that we will be studying thoroughly, right? Coding decoding हम first topic है हमारा, right? We'll be studying coding decoding. The second topic that we will be studying would be direction and blood relation, right? Direction and blood relation. Will it be helpful in banking examination? Yes, right? But I will be taking questions which are more relevant for these exams. If you talk about the concepts, Pawan, yes, concepts आपके यहाँ से clear हो जाएंगे. This will be beneficial for your banking exam also. Coding, guys, direction, then we will be studying the third topic, that is blood relation, right? Fourth topic I will be studying, that we will be studying in this course, will be input output, right? Then we will be talking about series, right, everybody? Then we talk about sitting arrangement, right? Sitting arrangement के questions, linear sitting arrangement, circular sitting arrangement, ये दोनों topics reasoning ability के अंदर आते हैं. I will be taking all these topics, right? पूरा का पूरा syllabus cover होगा. The complete reasoning ability is what I'm going to do on this YouTube chat, on this YouTube series, completely free, okay? The seventh would be our abstract reasoning, right? Abstract reasoning is also we will be studying. The eighth we will be counting the number of figures, right? Counting number of figures, that's also one of the type. Ninth is paper folding and cutting, right? Paper folding and cutting के questions आपको शायद NMAT में नहीं मिलेंगे, but you will definitely find the questions in Snap. So एक दो टॉपिक अगर NMAT में नहीं आ रहे हैं, स्नैप में आ रहे हैं, IIFT में नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र सिटी में आ रहे हैं, I will be simply covering all the topics that belongs to reasoning ability, guys, okay? Every topic, right? So ये 9 topics हो गए बच्चों. Other than these, बाकी जितने भी topics हैं, numeric series, right? Symbolic inequality, right? So all these basics reasoning ability chapters will be covered thoroughly in this course, guys, okay? ठीक है बच्चों? Shall we start with the first topic then, guys? पहला टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग का बच्चों, और हर टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे, और इसमें बहुत अमेजिंग शॉर्टकट मेथड्स भी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, राइट?
So we are going to start with the first topic of reasoning ability, and that is your coding decoding. अच्छा, ये topic किस exam के लिए relevant है बच्चों? Coding decoding is one of that topic which is applicable for all these entrance exam. NMAT में भी काम आएगा बच्चों, SNAP में भी काम आएगा, IIFT में भी काम आएगा, महाराष्ट्र सिटी में भी आएगा और CMAT में भी आएगा. This is a one single topic जो इन सभी से belong करता है बच्चों. Okay? So shall we start then guys? Ready? अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. The number of types of coding and decoding questions, right? The question that you're seeing right now in front of your screen, guys, in your screen, this is the most relevant coding decoding type of questions which are coming nowadays. Guys, coding decoding, you must have found a lot of questions of coding and decoding जिसके अंदर, जिसमें, just 1 minute. जिसमें you are supposed to find out the numeric value of each and every alphabet, है ना. बहुत सारी टाइप्स होती है बच्चों, राइट. सो हम टाइप वाइज सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे. डू नॉट वरी अबाउट इट. राइट नाउ इन द फर्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टाइप विच इज मोस्ट रेलेवेंट एंड कमिंग रिसेंटली इन अवर OMETs एग्जाम. जो अभी के एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें रिसेंट पेपर में आप देखोगे तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस दैट यू विल फाइंड, राइट. लुक एट इट गाइस. व्हाट यू हैव हियर इज that in a certain code language, this combination of word has been coded with this, right? And you have to find out the pattern of this coding, guys, right? You have to see what is the reason of this symbol, right? So basically, whichever coded word is given to you, whichever code is given to you for a particular word, you are supposed to decode the pattern of that, right? आपको decoding करना है rules का, राइट. किस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे या फिर किस पैटर्न के बेसिस के ऊपर ये कोडिंग बना हुआ है बच्चों. ओके, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं क्या सर इसको करने के? कुछ स्टैंडर्ड रूल्स याद रखेंगे हम उसके बाद? नहीं, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है बच्चों इसका. आपको दिमाग लगाना है कि हाउ दीज नंबर्स, सिंबल्स एंड लेटर्स can give us a combination of a pattern which has been used for these particular words. Okay, so ये कैसे देखेंगे? देखो, उसको करने का एक अप्रोच है जो अपने को देखना है बच्चों, राइट. फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू सी, क्या आपको पता लग रहा है बच्चों यहाँ पे कोडिंग का क्या पैटर्न है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस कोडिंग, राइट. क्वेश्चन कैसे आएंगे? सो हियर वी हैव दीज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, राइट. यहाँ पे 4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन का कोड दिया, सेकेंड स्टेटमेंट में भी 4 वर्ड के कॉम्बिनेशन का कोड दिया, थर्ड में भी दिया, फोर्थ में भी दिया हुआ, राइट. On the basis of it, once you decode कि किस पैटर्न के बेसिस पे ये कोडिंग हो रही है, once you decode that pattern, आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने होंगे. व्हाट इज द कोड फॉर क्लाउड स्काई डार्क, व्हाट इज द कोड फॉर लाउड क्राई किड, राइट. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं. सो बेसिकली इन द फर्स्ट स्टेप योर जॉब इज टू decode the pattern in which this coding has been made, guys, right. Is it clear, everyone? Everybody done? Right, now tell me guys, what do you guys think, right? आपको क्या लग रहा है? ये सिंबल, नंबर्स और ये लेटर का पैटर्न क्या होगा? व्हाट आर द रूल्स दैट आर गेटिंग फॉलोड इन दिस होल कोडेड पैटर्न, गाइस? चल मैं बताओ बच्चों क्या रीजन होगा इसमें? हाउ विल यू गेट टू नो? लुक एट इट गाइस, ऑब्जर्व इट. नंबर ऑफ, ओके, सबसे पहले आप देखो बच्चों, ये जो कोड बना हुआ है उसमें कौन से डिफरेंट, देयर आर 3 थिंग्स इन दैट कोड. वन इज अ नंबर, यस और नो. यू कैन सी दैट हर कोड के अंदर सबसे पहली जो टर्म है, that is your number, right? Then we have a symbol, right? You getting used, right? Third we have a letter, right? So we need to know the reason now. ये 15 किस लिए यूज हुआ होगा या फिर यहाँ पे 18 किस लिए यूज हुआ है, and what is this code has been used for which word, right? So generally in most of the cases, not in every case, in most of the cases you will see कि जो नंबर यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, these numbers are basically is somehow related to the number of letters in a word. They are somehow related to the number of letters in a word. For example, अब देखो बच्चों, ये कोई भी एक वर्ड उठा लो, पेस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों? पेस्ट्री वर्ड के अंदर 6, राइट. फ्राइड के अंदर 5 है, शेफ के अंदर 4 है, शेप के अंदर 5 है, राइट. So number of letters in this first word is 4. Here we have 5. Here we have 4. Here we have 5. Now just try to see. और यहाँ पे जो नंबर यूज हो रहे हैं 15, 18, 12, 15. Guys, tell me, 15, 18, 12, 15. Is it somehow related with this, guys? Tell me, guys, right? 3 हो गया, यहाँ पे 3. अच्छा, यहाँ पे 6 है बच्चों. This is 6, right? Not 5. This is 6.
Guys, tell me 15, 18, 12, 15 किसी तरह से ये नंबर से रिलेट हो सकते हैं क्या? You have to apply your mind here, right? Yes, you see that the numbers are basically 3 times of these values. You can see that 4 into 3 करोगे, sorry ये पहला जो है 5 है, 5 into 3 करोगे तो 15 आएगा, 6 into 3 करोगे तो 18 आएगा, 4 into 3 करोगे तो 12 आएगा, ये 5 into 3 करोगे तो 15 आएगा. Yes or no? So all these numbers are basically 3 times the number of the letters present in the word. Yes or no, guys? So all coding decoding questions are basically based on your observation, guys. You have to observe these rules, right? You have to decode these rules, right? So we get to know now, we get to know किसी भी एक particular term का reason अगर आपको पता लग गया, उसके basis पे easily you can also elaborate the reason, or you can find out the reason for symbols and letters also, right? So once I get to know it, ये 15 जो है ये this must be used for that particular word जिसके अंदर 5 letters होने चाहिए. ओके, सो 5 लेटर्स तो बच्चों यहाँ पे राइट के अंदर भी हैं, राइट, 5 तो शेप के अंदर भी हैं. ओके, 15 वाले 2 ही हैं बच्चों यहाँ पे, राइट. सो वंस आई गेट टू नो कि नंबर का रीजन क्या है, यू ट्राई टू पिक अ नंबर जिसके जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है. सो कैन सी दैट ई डबल जी का बच्चों अगर मुझे डी कोड करना होगा तो इसमें नंबर तो 9 ही आएगा बच्चों. यस और नो, नंबर 9 आएगा. Now we get to know, guys, we get to know कि ये जो नंबर है, ये जो कोड यूज हुआ है, this must be used for the word egg. Am I right or wrong? This code must be used for the word egg. Yes or no? Because किसी में भी वो 3 लेटर नहीं है. सेकेंड वाली स्टेटमेंट में कहीं भी हमारे पास 3 लेटर्स नहीं है. सो कैन आई से egg के लिए 9 @ t यूज हुआ होगा. नाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट कि ये सिंबल का रीजन क्या है और ये टी का रीजन क्या है. जितने भी अल्फाबेट्स हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड होते हैं. एवरी अल्फाबेट हैज अ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू. यस और नो गाइस, सबको पता है बच्चों ये वाली बात. फॉर एग्जांपल इफ आई से ए, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जब आप लिखते हो तो उसका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कितना है बच्चों. फॉर एग्जांपल यूज अ वर्ड ए के अंदर क्या आएगा बच्चों, ए इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू वुड बी 1 and B का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इज 2, C का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इज 3, D का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इज 4. ऐसे आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज पता होने चाहिए. रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा नहीं भी मारो, बट इस नंबर को डिफिकल्ट, दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैम, राइट. ये बहुत बेसिक सी वैल्यू है, राइट. इनकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आपको पता होने चाहिए. लेट मी जस्ट गिव यू अ पैटर्न ऑफ कीपिंग दिस इन माइंड. Always keep the word ejoti in your mind, guys, right? Can you keep the word ejoti in your mind? Yes. Now see that ejoti के अंदर E is positioned at 5, guys. J is positioned at 10, O is positioned at 15, T is positioned at 20, and Y is positioned at 25. Now with the reference of this, we can easily find out the alphanumeric value of the rest of the letters, right? For example, E से पहले क्या आता है बच्चों? Which alphabet come before E? E से पहले क्या आएगा बच्चों? D. So D का हो गया 4, E के बाद आता है F is 6. J से पहले क्या आता है बच्चों? I, so I हो गया 9, J के बाद आता है K, so K हो गया 11. O से पहले क्या आता है बच्चों? N is 14, O के बाद आएगा P, so P is 16. T से पहले S is 19, so U will be 21. Y से पहले X आएगा, that would be 24, and Z will be 26, right? So with the reference of it, we can easily find out the alphanumeric values of the 15 alphabets. Yes or no? 15 alphabets easily clear हो जाएंगे. And ABC 1 2 3 होता है, right? That is not difficult, right? And now you just need to keep in mind that there's a M is a middle word, right? Total alphabets होते हैं 26. M is middle, so इसको middle पे होने की वजह से you give it a numeric value of 13. M का position 13 है बच्चों. इसको याद कैसे रख सकते हो? There are total 26 alphabets. Half of it, M for middle. M is in the middle, right? That is 13, right? Middle value 13. So M13 होगा तो easily आप L को भी याद रख सकते हो. L will be equal to 12, and anyways is after M, that is equal to 14. Okay, so you guys can make a pattern, right, to keep all these alphanumeric values in your mind, right? कभी जल्दी अगर आपको find out करना है, for example I want to find out कि S का alphanumeric value क्या होगा. So I know that S is just before T, है ना? So S is just before T. If I know कि T is 20, so S will be 19, right? So I will be able to know this alphanumeric values very quickly.
एंड whenever you're supposed to solve coding decoding question guys, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आपको इन सभी लेटर्स की आनी चाहिए. ठीक है बच्चों, इज क्लियर? सो जैसे इसके अंदर भी ये आपको बहुत काम देगा बच्चों. दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, राइट? एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव we were coding the reason for the symbol and the letters here, right? Egg का जो बच्चों आपको कोड दिया, that is 9 @ t. So we get to know 9 is basically 3 times of number of letters. Now see this t ka, what is t? T ka alphanumeric value is 20, and if you look at it, e is 5. G कितने पे आएगा बच्चों? G is at a gap of 2 with 5. E तो यहाँ पे 7 आएगा, ये भी 7 आएगा. जब भी आपको अल्फाबेट का रीजन देखना है, always try to link it with the alphanumeric value of the last letter, right? ठीक है, ओके. हमेशा ऐसे ही होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है. यही चीज आपको दूसरों के लिए भी चेक करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल हियर गाइस, ना ये वाला किसके लिए यूज हो? दिस मस्ट बी यूज फॉर ऑन, राइट? यू हैव टू सी कि अभी इसमें कॉमन रूल क्या लग रहा है. ऑन के लिए कैन आई से दैट द कोड यूज्ड इज 9 @ m. नाउ m is in the middle, 13 हो गया, n is just after m, that is 14. Do you see some similarity here guys? 13, 14, 27. 7 plus 20 is also 27. So that is a reason of the alphabet. राइट? जो लास्ट में कोड के अंदर अल्फाबेट यूज हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि ये नंबर, ये जो पूरा वर्ड दिया, उस वर्ड के लास्ट लेटर की अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू और कोड के लेटर के अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज का समीशन जो आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 27. 14 + 30 27. और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के अंदर बच्चों 27 इटसेल्फ स्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस. 27 का एक सेपरेट इंपॉर्टेंस इसलिए, दो लेटर्स की अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का समीशन 27 होने का मतलब है that both of these two are opposite letters of each other. Opposite का मतलब क्या है? For example, if you see that m is a number, m is a letter which is at the 13th position from the start, right? But if you look at n को अगर मैं लास्ट से कैलकुलेट करूंगा, राइट, n would also, अगर दो अल्फाबेट का समेशन बच्चों 27 आ रहा है, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि ये m की स्टार्टिंग से जो रैंक आ रही है, वही सेम रैंक सेकंड वाले लेटर की लास्ट से आएगी. तो अगर मैं लास्ट से काउंटिंग करूंगा तो लास्ट से n 13th पोजीशन पे आएगा, राइट? दैट मींस देयर आर 13 लेटर on the right hand, there are 12 letters on the right hand side of n, and there are also 12 letters on the left hand side of m. So n is the 13th letter from the last, and m is also the 13th letter from the start. So if two alphabet values have a summation of 27, that means right कि उनका starting और end का rank दोनों का same आएगा. For example, आप a देख लीजिए, a फर्स्ट पोजीशन पे है और z 26th पोजीशन पे, इन दोनों का समेशन 27 है, राइट? a पहला अल्फाबेट है स्टार्टिंग से और z लास्ट अल्फाबेट है लास्ट से बच्चों. यस और नो? तो अगर दो लेटर का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का समेशन 27 आएगा तो ये रूल्स अप्लाई होंगे. और 27 वाला जो रूल है, ये कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चन में यूज होता है बच्चों, राइट? जैसे इसमें भी हम यूज कर रहे हैं बच्चों. इज इट क्लियर नाउ? Did you get it? Now we get to know the reason of the numbers. We get to know the reason of the alphabet. The only thing that we are left with is now the reason of the symbol, guys. अच्छा, symbol निकालने के लिए आप क्या करोगे? To find out the symbol, what you need to see is look at all those codes जिनके अंदर same symbol use हुआ है. जैसे इसमें भी @ use, दोनों symbols में @ use हो रहा है बच्चों, right? इन दोनों symbols में @ use हो रहा है. दोनों symbols में @ use होने का meaning क्या है बच्चों, right? Do we have any similarity in it? Yes, there is one similarity, as you can see that कि दोनों के अंदर एक ही vowel use हो रहा है. There is only one vowel, right? So one vowel means there is the letter that you're supposed to use. The symbol that you're supposed to use is @. Okay, let's try to check कि क्या ये बाकी जगह पे भी apply हो रहा है. For example here, अगर मुझे इसका कोड देखना है बच्चों, तो इसका कोड क्या होगा? The word ball. Can I say the code of this would be this? Yes. Now see that यहाँ पे भी @ यूज हुआ, इसके अंदर एक ही वोवल होना चाहिए. यस, इसके अंदर एक ही वोवल है बच्चों. अगेन ट्राई टू वेरीफाई इट विद सम अदर नंबर्स. इसके अंदर देखते हैं बच्चों, ये जो है ये 15 से शुरू होना चाहिए. ओके, और टी जो है बच्चों 20th पोजीशन पे है. यस और नो? तो इसका लास्ट में 7 वाला होना चाहिए. 20 + 7 27. 7th पोजीशन पे क्या आता है बच्चों? विच अल्फाबेट वी हैव ऑन द 7th पोजीशन? टेल मी गाइस. 27 7 पे कौन सा आएगा?
E5 पे G आएगा, तो ये G से एंड होना चाहिए। तो कैन आई से दिस मस्ट बी यूज फॉर $15 G, यस और नो? सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे दो वोवल्स हैं, सो कैन आई से दैट वन वोवल का मीनिंग हो गया एट द रेट, टू वोवल का मीनिंग हो गया dollar sign. Is it clear, everybody? Is it clear, everyone? Right? Okay, we need to go for some other also, right? कुछ किसी और चीज के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे दो वोवल्स यूज हो रहे हैं बच्चों, राइट? लुक एट इट। इसका कोड जो बनेगा वो 15 से स्टार्ट होगा, राइट? शेप वर्ड का 15 से स्टार्ट होगा और E is at 5, 22 होना चाहिए, लास्ट में 22 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। तो कैन आई से दिस गाइस, इसका कोड ये बनेगा W is at 25, W की पोजीशन क्या है बच्चों? 22, नहीं, 1 2 3। शेप का क्या आएगा बच्चों, बताओ? व्हाट वुड बी द कोड ऑफ शेप गाइस? कम ऑन टेल मी गाइस, व्हाट इज द कोड फॉर द शेप? अगर मुझे इसका कोड देखना है तो शेप के लिए 15 से स्टार्ट होगा, E is at a position of 5, तो मेरे को इसके लिए 22 वाला चाहिए। 22 पे कौन सा आता है? 22 + 5 27 ना, राइट? 22 पे V, तो दिस मस्ट बी यूज फॉर इट, राइट? दिस इज द कोड ऑफ इट, राइट? ओके, यहाँ पे दो वोवल्स हो रहे हैं, दो वोवल्स के लिए डॉलर साइन यूज हो रहा है, राइट? सो ये कंफर्म हो गया बच्चों। वन वोवल मीन एट द रेट, टू वोवल्स मीन डॉलर साइन। अच्छा, और कोई सिंबल है नहीं, एक सिंबल यहाँ पे यूज हो रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला। ओके, टेल मी गाइस, ये किसका कोड होगा? 15 से है तो 5 लेटर वाला होना चाहिए। ओके, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। G से एंड हो रहा है, G7, तो एंड में 20 वाला होना चाहिए, तो ये दिस मस्ट बी फॉर क्रिप्ट, राइट? क्रिप्ट के अंदर जीरो वोवल है, जीरो वोवल मीन क्वेश्चन मार्क। सो दैट्स अ होल डी कोड गाइस, राइट? अभी हमने पूरे पैटर्न को डी कोड कर लिया। once you decode the pattern guys, you guys can easily answer all these questions. अब ये सारे आंसर्स को बहुत इजीली आप कर सकते हो बच्चों, राइट? और यस एवरीबॉडी, समझ में आया बच्चों? नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। टेल मी गाइस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द कोड फॉर क्लाउड स्काई डार्क? पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बच्चों? क्लाउड, राइट? ये नंबर्स सबसे पहले एक ही चीज के लिए जाओ, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करो। 15 9 और 12 बच्चों, 59 12 होना चाहिए, सब में 59 12 है। Okay, the next thing that we should go for is symbol now, right? Symbols के लिए जाना चाहिए। इसमें कोई एक उठा लो, इसमें कोई भी वोवल नहीं है, तो 9 के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा, तो 9 के साथ क्वेश्चन मार्क, तो ये ऑप्शंस दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। And look at these two ऑप्शन, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, तो ये 4 के साथ तो 12 भी आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो we will go with B ऑप्शन now, right? So B would be the right answer to the question, right? What will be the code for loud cry kit, guys? What is the code for this? Look at it. 4 लेटर है बच्चों इसके अंदर, 4 into 3 12, ये 9 आएगा बच्चों, this will also be 9. Come on guys, comment your answer. इसका क्या आंसर आएगा? 12 9 9 होना चाहिए बच्चों। Can I eliminate this option? Okay, ये यहाँ पे देखो, क्राई के साथ यहाँ पे मेरे को डॉलर साइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक वोवल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एट द रेट लगाना पड़ेगा। Am I right or wrong? सो 9 के साथ क्वेश्चन मार्क और एट द रेट आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। यहाँ पे 12 है, तो ये भी एलिमिनेट। सो गाइस, व्हाट आर यू लेफ्ट विद नाउ? कौन सी ऑप्शंस बची है हमारे पास, राइट? ठीक है, 12 9 9 और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ टेल मी गाइस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये डिफरेंस है। सो ट्राई टू सी द रीजन फॉर दिस। y का बच्चों, y का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू इज व्हाट? 25, तो इसके साथ जो लेटर यूज होगा वही होगा जिसकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू 2 होगी, सो दैट द समेशन कैन बी 27। तो 2 पे कौन सा आता है? B, तो B से एंड होना चाहिए, तो C भी एलिमिनेट, सो आंसर वुड बी D ऑप्शन। गॉट इट? इजी बच्चों। व्हाट इज द कोड फॉर स्पाई टीम लॉस्ट? कम ऑन गाइस, टेल मी। अभी इसका कोड बताना है आपको, बोलो बच्चों क्या आएगा? स्पाई वर्ड, दिस वुड बी 9, 4 into 3 12, 4 into 3 12, 9 12 12 बच्चों, बताओ कौन सा आएगा? 9 12 12। ओके, 9, तो ये ऑप्शन, ये एलिमेंट, तो इसी पे आंसर आ जाएगा, बी इज राइट आंसर। डिड यू गेट इट गाइस? राइट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सोल्व द क्वेश्चन। अगर कोडिंग सिंबल्स नंबर्स के बेस पे हो रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस। ओके, these are the types which is now coming in coming in lot of exams. अभी ये बहुत एग्जाम्स के अंदर इसी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, will you be able to do it? Did you get it now?
Okay. Now let's go for one more set, guys. Come on, quickly. ये चारों के चारों questions quickly solve करो. I'm giving you 2 minutes to attempt to decode the pattern now, right? Once you understand it कि क्या pattern है, then questions can easily be solved. Come on, guys, go for it. Find out the reasons. Look at it, guys, right? Look at this. Observe it carefully. You can see that these codes are also again a combination of numbers, symbol, and letter. Go for the reason, guys, now, right? Try to find out the reason of the number, try to find out the reason of the symbol, try to find out the reason of the letter. Okay? बताओ बच्चों क्या आएगा? Try to look for those codes which are having the same number or same alphabet, guys, right? सेम नंबर जहाँ यूज हो रहे हैं, सेम अल्फाबेट जहाँ यूज हो रहे हैं, सेम सिंबल्स जहाँ यूज हो रहे हैं, पिक दोज कोड्स एंड डिकोड इट. वही कोड को, वो कोड्स को पिक करो और इसको डिकोड करो बच्चों, राइट? रीजन फाइंड आउट करो. सबसे पहले नंबर का इजी रहता है बच्चों. किसी को डिकोड हुआ क्या? एनीबॉडी हु हैव डन इट? टेल मी गाइस. बोलो. डन guys? You see this? You see this? There are 5 letters here. The 5 letters here. यहाँ पे भी 5 letters हैं. There are 5 letters here. 4 here, 4 here. So 5, 5, 4, and 4. 5, 5, 4, 4, guys, right? How is it related, guys? किस तरह से related हो सकता है बच्चों, ये बताओ. यहाँ पे 8, 8, 7, 7. Clearly click कर जाएगा. Letter, number is basically the number of letter plus 3. Number of letters in that word plus 3. Yes or no? Once you get to know it, once you get to know this, you guys can easily find out the reason of symbols also. अब कोई भी एक नंबर उठा लो जिस जो किसी के साथ कॉमन नहीं हो रहा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इस सेकेंड वाली स्टेटमेंट के अंदर लुक एट द वर्ड जग. जग के लिए जो कोड यूज हो रहा है बच्चों, जग के लिए ये कोड यूज हो रहा होगा फॉर श्योर, राइट? तो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. यहां से हमें सिंबल का रीजन पता लग सकता है बच्चों. 6 स्टार जी. यहां से लेटर का रीजन पता करो. ट्राई टू नो द रीजन ऑफ द लेटर. जी का कोड कितना है बच्चों? अच्छा, कोडिंग तो है नहीं. ऑलराइट, दिस इज इवन मोर इजी गाइस. दिस इज मच इजियर गाइस. यस और नो? ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया. व्हाई? बिकॉज सिंपली द लास्ट लेटर, राइट? लास्ट जो लेटर है उसी को आपने कोड के अंदर यूज किए. सो लेटर इज बेसिकली द लास्ट लेटर ऑफ द, राइट? जो कोड के अंदर जो लेटर यूज हो रहा है, दैट्स द लास्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड. नाउ वी नीड टू नो द रीजन ऑफ द सिंबल गाइस. सिंबल देखना है अपने को. स्टार यूज हो रहा है. डू वी हैव एनी अदर कोड जिसके अंदर स्टार यूज हो रहा है बच्चों? यस, दिस इज द नंबर, राइट? इसके अंदर स्टार यूज हो रहा है बच्चों. यू गाइस कैन सी दिस, राइट एवरीवन? ठीक है, एग्जैक्टली. सो स्टार इसमें यूज हो रहा है, तो बच्चों ये किसके लिए यूज हो रहा होगा? ये दिस इज यूज फॉर द वर्ड जैक. टेल मी गाइस, जैक के अंदर दिस हैज टू बी 7, इट हैज टू बी एंडेड विद के, और यहाँ पे भी स्टार यूज हो रहा है. स्टार यूज होने के लिए व्हाट इज द सिमिलरिटी? डू यू सी दिस गाइस? इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है?
सिमिलैरिटी इज इनका फर्स्ट लेटर सेम है, दैट इज जे। दैट मीन जे से स्टार्ट होने वाले, जे से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स का कोड इज स्टार, राइट? सो दिस जैम, यहाँ पे स्टार यूज हो रहा है, जीप यहाँ पे स्टार यूज हो रहा है, राइट? सो वी गेट टू नो दैट सिंबल के लिए क्या रखना है, अगर कोई जे से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टार यूज करना है, राइट? Similarly, you need to find out the reason of the other symbols now, right? So symbols are basically related to the first letter. So symbol जो हुए बच्चों, उनका रीजन क्या है? Symbols are basically used for the first letter बच्चों। अब फर्स्ट लेटर को उठाओ, पहले लेटर के बेसिस पे हम सारे सिंबल्स देख सकते हैं। एट द रेट, ये आर के लिए यूज हो रहा है, ओके? आर के लिए यूज हो रहा है। एट द रेट क्रॉस वेरीफाई करो, यहाँ पे भी कोई एट द रेट आर वाला है क्या? रेल, यस। सो आर से स्टार्ट होने वाला जो है उसके लिए सिंबल एट द रेट यूज करना है। देन वी हैव लेफ्ट विद दिस सिंबल गाइस। ये सिंबल में, ये सिंबल किसके लिए यूज हुआ होगा? दिस वर्ड, राइट? तो दिस मस्ट बी फॉर एम। एम के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है बच्चों, राइट? देन वी हैव अ डॉलर साइन। डॉलर साइन का रीजन क्या होगा बच्चों? के से एंड कर रहा है, बैक। सो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए अपने को डॉलर साइन यूज करना है। Any other symbol? Do we have any other symbol? No, we don't have any other symbol, guys, right? Now guys, what does this code stand for? ये code किसके लिए stand करेगा बच्चों? Okay, तो at the rate है तो R ही आएगा बच्चों। तो कहना है इसे कि इसके अंदर तीनों के तीनों लेटर्स वर्ड्स R से शुरू होने चाहिए। Am I right? So we can eliminate these options, right? Now 777 का मीनिंग हुआ कि सब में 4 लेटर्स होने चाहिए, 4 लेटर्स होने चाहिए, ओके, सब में, राइट? तो इसमें 3 है तो ये एलिमिनेट हो गया। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। गॉट इट? इजी। चलो गाइस, व्हाट इज द आंसर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? या हाँ, चलो बताओ, पहले यही करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर मैनी जंप राउंड? क्या आंसर आएगा बच्चों? सीरीज गाइस 4 से स्टार्ट हो रहा है, 7 आएगा बच्चों इसका, 7 आएगा इसका भी, 8, 7 7 8 से शुरू होना चाहिए, ओके? तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ओके? एम, जे और आर, एम से स्टार्ट है बच्चों तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके? तो इसके साथ ये एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। जे से स्टार्ट तो एक के साथ स्टार आना चाहिए, 7 के साथ एक्सक्लेमेशन और स्टार आना चाहिए, ये भी एलिमिनेट। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, ओके? चलिए solve this question. Question number 6 का आंसर क्या आएगा? What is the answer of this question, guys? Go for it. What is the code of raise back mom? बताओ बच्चों, go for it. 7 7 6 7 7 6 चाहिए बच्चों, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ओके? ये ई से एंड होना चाहिए, के से होना चाहिए, एम से, ई के एम से एंड होने चाहिए, ई के एम, ठीक है? बात आ जाएगी सिंबल पे। आर के लिए सिंबल यूज होना चाहिए एट द रेट, ए के लिए, ओके, बी के लिए सिंबल यूज होना चाहिए डॉलर, तो ये भी एलिमिनेट। सो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। Look at the question number 8 now, guys. 8 का बताओ बच्चों, what does the code represent? सो गाइस 5 लेटर्स का होना चाहिए, ये भी 5 लेटर का, 5 लेटर्स ही होने चाहिए बच्चों, ये जानो सब में 5 है, करेक्ट? तो ये ओ से एंड हो रहा है, एक सी से हो रहा है, एक टी से एंड हो रहा है, ओ सी टी से एंड होना चाहिए, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ए वुड बी द राइट आंसर, ओके? इज इट क्लियर एवरीवन? ऑल गुड? समझ में आ गया सबको? विल यू बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप्स नाउ? This is one of that type of questions of coding and decoding, right? एक और सेट कर लें जल्दी से, right? चलो बच्चों, now tell me guys, what will be the decoded pattern of it? Easy and doable, right? हाँ, reasoning ability के questions ना, right? They are easy to understand, but you guys need an exposure to it. अगर आपने ये सेट पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हुए, if you have not seen these type of questions ever before, then it will become difficult.
राइट? जिन बच्चों ने पहले कभी ऐसा सेट नहीं सोल्व किया उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट नो एग्जैक्टली द वे टू सॉल्व इट. You people do not know the approach of solving this. Once you know the approach, then it becomes easy. Got it? चलो बच्चों जल्दी से कीजिए इस सेट को. Right? Let's quickly cover this up. Now you see this. First we have the letter, right? Then we have the symbol, and then we have the number. क्या बन रहा है बच्चों इसके अंदर रीजन? Go for it. Give me the reason behind it. लेटर का रीजन देखो, नंबर्स का रीजन देखो. राइट? नंबर ऑफ लेटर्स है 5. 5 5 3 4. So I can clearly see, guys, numbers are basically number of letters in a word minus 1. Am I right or wrong? Number of letters minus 1 is the reason of the number. So once you know this, now you guys can also see the gap word के लिए जो code use होना चाहिए उसमें number आना चाहिए 2. तो can I say कि gap word का code जो होगा वो यही होगा? Yes or no? Gap word का reason would be this. Now GAP, guys, right? It is coded as Q, this symbol and the number 2. So guys, tell me, do you see any similarity for this letter? ये letter का reason क्या होगा बच्चों? P plus 1, right? Q, okay. This should also be applicable for other numbers. For example, look at this word, LIMB. तो अगर यही logic लगाना है तो फिर 4 minus 1 3 और C से शुरू होना चाहिए, 3 पे end होना चाहिए. तो yes, I have this. और ये percentage हो रहा है, percentage symbol use हुआ है. Tell me guys, what is the reason of the word symbol percentage now? Percentage कहीं और तो use नहीं हो रहा है, right? Okay. सिंबल का रीजन देखने के लिए आपको दो सेम सिंबल वाले नंबर्स उठाने पड़ेंगे, दो सेम सिंबल वाले कोड उठाने पड़ेंगे. यू सी दैट वी हैव द सेम कोड हियर, राइट? ये किस किस का कोड है बच्चों? 4 से एंड हो रहा है. और तो चेस्ट वर्ड जो है बच्चों, चेस्ट के लिए यू सी दैट सिंबल कोड इज U#4, right? Similarly, ये जो कोड है बच्चों, right? This code must have been used for what? O से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो ये this must be used for con, right? Am I right? So बच्चों, what is the similarity? इन दोनों में ऐसी क्या similarity है कि दोनों में same symbol use हुआ? Both are starting with the same letter C. So can I say the first letter? First letter is the reason of the symbol. So first letter symbol का reason है, तो उसके basis पे आप सारे देख सकते हो. Yes or no? Yes or no, guys? Right? Everybody clear with this? So guys, tell me now. C के लिए I can say that hashtag use करना है आपको. तो बताओ बच्चों, T के लिए कौन सा यूज हो रहा है? फिर लेटर T के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है? ये GHI से स्टार्ट होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, राइट? ओके. G के लिए कौन सा यूज हो रहा है बच्चों? G के लिए यू सी दैट इसका कोड है ये, तो इसके लिए सिंबल हो रहा है दिस वन, राइट? एंड L के लिए कौन सा यूज हो रहा है बच्चों? परसेंटेज, राइट? B हमने देख लिया. S के लिए कौन सा सिंबल हो रहा है बच्चों? ये किसका है कोड? इसका कोड जो बनेगा वो 3 से एंड होना चाहिए और F से शुरू होना चाहिए, राइट? सो दिस इज एट द रेट. गॉट इट? कोई और सिंबल है? ओके, हाँ, ये सिंबल एक यूज हो रहा है. तो X तो W, राइट? तो कैन आई से दिस गाइज कि B से जो शुरू हो रहा है उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? स्टार जो है बच्चों किसके लिए यूज हुआ है? F E से एंड हो रहा होगा. P के लिए यूज हो रहा है बच्चों स्टार. गॉट इट? सारे सिंबल्स के रीजन पता लग गए. एक सिंबल ये बचा हुआ है यहाँ पे. बताओ बच्चों इसका रीजन क्या है? ये किसके लिए यूज हुआ है? 2 से एंड हो रहा है, तो इट मस्ट बी हैविंग 3 लेटर. तो E से स्टार्ट हो रहा है. E से स्टार्ट जो होगा उसके लिए आपको ये सिंबल यूज करना है. डन बच्चों? इट्स डन. Once you decode it, you guys can answer the question. What is the code for this, guys, right? अभी numbers देख लेते हैं पहले. Numbers are easy to watch. 3 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का -1 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 -1 9 5 -1 4 5 9 4 होना चाहिए बच्चों. सब में 5 9 4 है. चलो कोई बात नहीं.
Then the next thing that you should try to do is last letter -1 था, numbers के बाद दिस मस्ट बी R का नेक्स्ट S होना चाहिए बच्चों, S का नेक्स्ट T होना चाहिए और K का नेक्स्ट L होना चाहिए, राइट? तो S5 T9 L4 ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब ये दोनों में सिंबल्स देखना है मुझे, राइट? सिंबल्स में एक ही बार में हो रहा है, ओके। अब इन दोनों में डिफरेंस है S के लिए, S का सिंबल है @ तो यहाँ पे @ आना चाहिए, so we should eliminate this and B would be the right answer. Got it? Everybody clear with this? समझ में आ गया बच्चों? किसी को डाउट है तो बताओ। अभी वॉइस क्लियर आ रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? Okay. Give me the answer for this question, guys. बताओ बच्चों। 3 है तो 4 लेटर होने चाहिए, 9 है तो 10 होना चाहिए, 6 है तो 7 होना चाहिए। 4, 10, 7 वाले लेटर होने चाहिए, 4 लेटर वाला होना चाहिए कुछ। यहाँ पे 3 लेटर है, एलिमिनेट। 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है तो एलिमिनेट, ओके। लास्ट वाला 7 होना चाहिए तो ये एलिमिनेट, डी वुड बी द राइट आंसर। What will be the code for this? Guys, अब I guess easily आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 6 7 8 6 बच्चों, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट? T है तो यहाँ पे U आएगा, E है तो यहाँ पे F आएगा, तो ये भी एलिमिनेट, so C will be the right answer. So guys, we have covered one of the type of coding and decoding question in this, right? बाकी के questions बच्चों कल के session में करते हैं. I'll be taking another session, right? So tomorrow we'll be taking rest of the questions of this series. Thank you so much for joining the session, guys. See you in the next class. Bye bye. Take care and subscribe to the channel to cover your 100% quant and DLR syllabus for CAT and OMETs. Reasoning ability पूरा का पूरा बच्चों इस पे cover हो जाएगा, okay? ठीक है? Is it done? फर्स्ट टाइप्स आपको समझ में आ गई? इज इट क्लियर? राइट, चलो सी गाइस, इसके बाकी के जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज वाले, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स के भी होते हैं, राइट? वी विल डू दैट, ओके। देखो ये OMETs के लिए ना चैप्टर हम सेशन वाइज स्ट्रेटेजी ले लेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। स्नैप की स्ट्रेटेजी में मेन चीजें क्या ध्यान रखनी है, NMAT की स्ट्रेटेजी में मेन पॉइंट्स क्या आपको ध्यान रखने हैं, कौन से टॉपिक पे स्पेसिफिकली आपको ज्यादा पढ़ना है, right? So we will cover there, right? ठीक है? All right, guys. See you in the next session, guys. Take care. Please share the link with other students who are preparing for the same exams. Thank you. Take care, guys. Thanks a lot.